حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ہے. علم ہم پڑھ لیتے ہیں انگلش تعلیم وغیرہ، مگر عربی اردو بھی پڑھنا ہے. حدیث قرآن چھوٹے بچے بھی آ کے پڑھے ہیں، نعتیں پڑھے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے. الحمدللہ الحمدللہ. مسجدیں تو کافی لوگ بنا دیتے ہیں. مسجد میں پڑھانے والا امام مدرسے سے تعلیم حاصل کر کے نکلتا ہے. مدرسے جب قائم ہو جائیں گے تو نماز پڑھانے والا بھی بہتر نکلے گا. مدرسے کے لیے لوگ آگے نہیں بڑھتے، مسجدوں کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. پتی کنڈے میں ایک بارگاہ ہے جو ہمارے سوسے صاحب کی ہے. وہ مسجد بنا دیے، کسی کا پیسہ نہیں. ان کو حکم ہوا تھا مسجد بنانا، مسجد تو تعمیر کر دی، عالیشان مسجد، مگر امام نہیں آ رہا ہے. انہوں بول رہے تھے جملہ میرے سامنے، حضرت صاحب مسجد بنانا میرے لیے آسان ہو گیا مگر امام ملنا مشکل ہو رہا ہے. کوئی امام آنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے پہلے مدرسے قائم ہوں گے تو علم حاصل ہو جائے گا. علم حاصل ہو جائے تو ہمارے امام نکلیں گے، مفتیان کرام نکلیں گے، علماء کرام نکلیں گے، تو جگہ جگہ پہنچ کر علم کو بڑھایا کرایا کریں گے. چنانچہ اس مدرسے میں ہمیشہ آتے رہتا ہوں. افتتاح میں، جلسوں میں والد صاحب بھی آیا کرتے تھے. الحمدللہ مدرسہ اچھا قائم ہے، پڑھایا جا رہا ہے، بچے بھی پڑھ رہے ہیں. اللہ مبارکباد ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں. اور ان چند جملات سے میں دوسرے علماء کرام بھی ہیں. الحمدللہ میں دعا یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے علم میں اور اضافہ ہو اور اس مدرسے کی ترقی ہو. اور رمضان مبارک بھی آنے والا ہے، عبادتوں، ذکر و اذکار سے ہمیں خوشیاں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں. اور دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آخرت کی ہم تیاری کریں. آخرت کی تیاری کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے لیے ہمارے پاس علم ہونا ضروری ہے. اور دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دنیا کا علم ہونا ضروری ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں آپ کو یہاں پر یہ کمیٹی والوں نے، مسجد کی کمیٹی والوں نے آپ کے لیے مہیا کرائی ہیں. اسکول کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہے اور مدرسے کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہے، جہاں سے آپ دنیا کمانے کے لیے اور دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے اسکول کی تعلیم آپ کو کام آئے گی. اور ساتھ ساتھ میں جب دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور دین کی تعلیم کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں گے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں، لیکن افضل العبادہ کون سی ہے؟ نماز ہے. اور نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا ضروری ہے. اگر قرآن پڑھنے ہمیں نہ آئے تو ہم صرف نماز، صرف اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوگا، لیکن حقیقی معنوں میں ہماری نماز قابل تکمیل کو یا قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو دنیا کے اندر ہمیں ساری زندگی گزاریں تو یہاں اللہ کی عبادت، بہترین عبادت اور افضل العبادت نماز ہے، اور نماز کے لیے قرآن ضروری ہے. تو یہاں پر قرآن کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. تو بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر دونوں چیزیں ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ہمیں قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے اسی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو پڑھانے والے لوگ ہیں ان لوگوں کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرمائے اور ان کے علم کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے. رب کائنات کونین کی دولت سے ہم تمام لوگوں کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ قریب 20 طلباء ناظرہ کمپلیٹ کیے ہیں اور ان کو قرآن مجید کی تحفے میں دیا جا رہا ہے. ڈھولچا پہلوان رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کی کمیٹی جناب ذکریہ بھائی اور ان کی ٹیم تعریف کے قابل ہے کہ ایک مدرسہ چلا رہے ہیں.
जो कोई भी कुरान सीखेगा और कुरान को सिखाएगा वो बेहतरीन लोगों में से है। मैं हमारे मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अगर एक वक्त का खाना नहीं खाएं तो भी परवाह नहीं, बच्चों को इल्म सिखाइए। इल्म ही है जो अच्छा और बुरा सिखाता है, सवाब और गुनाह सिखाता है। हमें पढ़कर ही बता सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरों की तरह क्या बोल रही कि भाई हमारे को मालूम नहीं, कैसे रहता है तो कहीं को क्या पढ़ेगा कि क्या नहीं होता। इसलिए इल्म सीखना बहुत सख्त ज़रूरी है। हमारे ऐसे मदरसे के जहाँ जहाँ आदमी बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मदरसे के जो भी अराकीन कमेटी लोग हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे और उनकी उम्र दराज करे कि और ज़्यादा काम करें। तो सीखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। हम मदरसे के अराकीन से गुजारिश करता हूँ कि ना सिर्फ कुरान मजीद सिखाने की कोशिश करें कि दुनिया के क्या क्या इल्म है वो भी रखने की कोशिश कीजिए, और जो कुछ भी मदद वक्फ बोर्ड से हो सकती है, जो कुछ मदद हुकूमत से हो सकती है करने का, हम दूसरे लोग हैं इसलिए उनकी कोशिश में हम मदद करेंगे और उनको जो भी हमारी गवर्नमेंट से मिलना चाहिए उससे मिलाएंगे। हमारे बच्चों का खुशी का दिन है। मैं इसी के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा ही मुबारक है कि हमारे इस मदरसे धुलशाह पहलवान रहमतुल्लाह तआला अलैह से जो तलबा इस साल नाज़िरा कुरान मजीद मुकम्मल किए हैं उनके लिए कुरान पाक बतौर तोहफ़ा दिया जा रहा है। की तालीम से आरास्ता करने की कोशिश की जाती है। उसी में से एक मदरसा मस्जिद हज़रत धौल शाह पहलवान का भी मदरसा है। यहाँ के ज़िम्मेदारान और अराकीन बड़े काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने ये ज़िम्मा इसका बेड़ा उठाया, और साथ ही साथ एक अंग्रेज़ी और तेलुगु का स्कूल भी यहाँ पर कायम किया गया है, क्योंकि आज सिर्फ दीनी तालीम पढ़ा करके बच्चों को छोड़ देना ये दुनियावी एतबार से नाकाफ़ी होगा। आज निहायत ज़रूरी है कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ स्कूल का भी सिलेबस पढ़ाया जाए, उनको स्कूल की तालीम अंग्रेज़ी तालीम से भी उनको आरास्ता किया जाए। स्कूल भी यहाँ पर कायम हुआ और कुरान करीम की तालीम भी हो रही है। बड़ी खुशी और मसरत की बात है, और दुआ है कि परवरदिगार इनकी खिदमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इन तमाम जिम्मेदारान की सेहत में, उम्र में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता। सवाल हो गया, जवाब दोनों के मिल गए। अब शैतान ने कहा अपने चेहरों से देखा पहले जो आया था वो नमाजी था, इल्म नहीं था उसके पास। उसने क्या किया, अरे इतनी छोटी शीशी में सातों जमीन और सातों आसमान कैसे आएंगे, इनकार कर बैठा। अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है, इस बात की कुदरत रखता है कि वो सातों जमीन और सातों आसमान नहीं बल्कि सारी कहकशा को इसमें समाज सकता है। लेकिन जब आलिम से सवाल हुआ तो आलिम ने क्या कहा, आलिम ने कहा ये तो बड़ी चीज है, इससे छोटी चीज में भी अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों को रख सकता है। तो पता चला इल्म हासिल करने से इंसान का ईमान महफूज रहता है। इल्म हासिल करने से इल्म हासिल करने वाला लोगों के ईमान की हिफाजत भी करता है। तो काबिल मुबारकबाद है इस मस्जिद के कमेटी वाले जो ये बड़ा काम अपने जिम्मे लेकर संभाल रहे हैं। दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम के लिए एक कोशा है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और इस महल्ले वालों को ये हिदायत अता फरमाए कि अपने बच्चों को मदरसे तक भेजे, यहाँ हो चाहे दूर के हो, मदरसे तक आकर पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से अपने दामन को भरपूर करे। जलसा पे जो भी हजरात हैं उनको मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज बहुत ही खुशी का मौका है कि अल्लाह के फजल से जो बच्चे हमारे जो कुरान शरीफ का जो इल्म हासिल करें और उनका कुरान शरीफ ख़त्म करें, उनके सिलसिले में जो मस्जिद कमेटी, धौल शाह पहलवान मस्जिद कमेटी और मदरसा कमेटी वाले जो है प्रोग्राम रखे हैं, इसमें मेरे आने में थोड़ा तासीर हुई, माफ़ चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों हमारे मदरसे के बच्चे ऐसे ही तरक्की करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ आगे हम लोग जा सकते हैं। बच्चों का मुस्तकबिल भी सीधा रहता बोल के उम्मीद करते हुए, और ये मुझे मौका दिए मैं कमेटी वालों हजरत का और खुसूसन यहाँ पर जो टीचर हजरत है ना, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि
क्योंकि कमेटी वाले तो ऐसा वर्क करते हैं, बट बच्चों का ख्याल सब कुछ करना बोले तो ये हजरात का ख्याल, इनका बहुत मेजर रोल रहता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ देखते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे, सब तालिब इल्म सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। ज़रूर बच्चों का कामयाबी होती बोल के उस उम्मीद के साथ और दुआ के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मदरसा मस्जिद ये दोनों चीज़ 2005 में हमें मस्जिद मेंटेन करने आए। एपी वक्फ बोर्ड हैदराबाद था जब 11 आदमी से कमेटी बनाए, छोटी सी मस्जिद सबको मालूम, चंद मोहल्ले वाले उधर बाजू मोहल्ले वाले सब जने मिलके इसे सपोर्ट करके वो कमेटी में 11 आदमी आते। 11 आदमी से अल्लाह ताला हजरत दुलचा पहलन दुआ से ये इतनी बड़ी आधुनिक मस्जिद बने चुके हैं। आधुनिक पब्लिक भी बहुत साथ अब तक का दिए है। जब छोटे से यहाँ एक तालीम थी, जब मदरसा खोलना का तो बोल को गुलशनी मदरसा खोल को है, जब चंद आगे साहब चंद साहेबा को तुम्हारे इसमें हमना मदरसा खोलने की इजाज़त दो, हमना जगह मिले तक तो बोले तो जब उनको इजाज़त दिए तो उन्होंने एक 4 साल के 5 साल की खोल लेके जब मुखबरे के नहीं उनको क्या कि जगह मिले तो उधर मदरसा ले को गए, उन्होंने उधर ओपनिंग कर लिए। उसके बाद अब इधर मदरसा नहीं है तो बोल को फिर भी बैठ कर बात कर रहे थे कि ना चंद मोहल्ले वाले जब बाशु भाई चंद अदना मिल को ये मदरसा मेंटेन करते थे। वो मदरसे से ये लॉकडाउन से उसमें से चंद अदना जरा हैदराबाद को गए बाशु भाई, उन्होंने ये कमेटी के 11 आदमी मिलके अब फिर लॉकडाउन हो जाने के बाद ये मदरसा चलाना। खैर मदरसा चलाने का 3 वक्त का इंतजाम कर दी हाफिज साहब, लेकिन फिर भी चंद एकदम बोलना शुरू है। लेकिन इंग्लिश मीडियम आज के दिन में मालूमात है तुम्हारा इंग्लिश मीडियम की हालत क्या है दूसरी जगह, वो हालात देख के एक इंग्लिश मीडियम हर मस्जिद को हर एरिया में मदरसा इंग्लिश मीडियम खोलना करने का हमारा एक दुलचा पहलन की तरफ से एक बुलावा है। कई को तो मालूम भी है, गुलबर्गा उधर सब भी चले सो, वो हिसाब से हमारा हमें रखने को मेंटेन करना करने का एक आइडिया आया। इसलिए ये आधुनिक आम पब्लिक से भी स्टेज पर है सो बड़े में से भी सपोर्ट है हमें। ये मदरसा ये इंग्लिश मीडियम और ये साल अभी जास्ती बच्चों को लेके जास्ती इम्प्रूव करना का तो बोल को हमारा आइडिया है। इसलिए ये आधुनिक पब्लिक धंधे मोहल्ले के नई जवान बच्चे धंधे बड़े में धंधे स्टेज पर है सो बड़े में धंधे जास्ती तो ये प्रॉपर्टी भी जरा लिटिगेशन में है। इतने दिन चेयरमैन वो बोर्ड चेयरमैन ही नहीं था ऊपर हैदराबाद में, 5 साल गुजर को गए, चेयरमैन नहीं सर का बोर्ड चले गया। वो बोर्ड ऐसा दीवाना है, खा रहा है क्या तो बोले तो वो 2 घंटे में बोलता खाया का बोल, वो ऐसा है क्या कि हमारे यहाँ के उलमा की दुआ से बड़े दिन की दुआ से यहाँ नियाज अहमद साहब को चेयरमैन बने। हमें उन्हीं से ये गुजारिश से ये आधुनिक सारे मसले हैं, सारे मसले तो हल नहीं कर सकते, हाथ से भी होते मसले ये वो प्रॉपर्टी के ये कमटियाँ के ये जगह के इसके हल कर को एक है तक का किसका उसे हैंड ओवर कर को गए तो बहुत अच्छा रहता। तो मेरी उनसे गुजारिश है वैसा जो आज इसे हमारे बच्चे को चलाने का मकसद भी एक टीचर है, उन्होंने ये कमेटी में काम करना नहीं करना उसमें रोज काम करना करने का नहीं है, हर बात को भी कैसा लग जाना इसे हमें तो हजरत थे इनके सामने हमें दीन के बारे में तो हमना इतना एतलाज नहीं,
बहुत सारे बातें बता चुकी हैं। हमें भी इसके बारे में अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन जरा से मालूमात तो हो जा ऐसे इसमें बैठे तो। हमारे रशीद पटेल हर इसमें हमारी मस्जिद में रहते, मदरसे में रहते, स्कूल में रहते, हर काम में भी हमें इस तरह को काम करने का एक मकसद है। उससे ये प्रोग्राम फिक्स करें। ये प्रोग्राम को डुलचा पुलन मस्जिद की तरफ से मुतल्लिक़ को बुलाए। सो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी, बुलाने के बाद पीछे जाको ये सबक मीटिंग को हाजिर होगो। ये बिस्फो दो में बच्चों को कुरान डिस्ट्रीब्यूट करने के वास्ते वो तैयारी करको उनके बच्चों के नाम बुलाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुरान मजीद को घरों में महफूज रखने के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग कुरान मजीद रमज़ान में कसरत से पढ़ें और इसका सवाब अपने बुजुर्गों को बख्शें। और माँ बहनों से भी गुजारिश करता हूँ, जो बच्चियों को भी दिया गया है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि कुरान मजीद को खास कर रमज़ान में तिलावत करें। जो जो हजरात इसमें कार्य खैर में खिदमत अंजाम दी है उनके हक़ में भी दुआ करें और मदरसा मस्जिद के मेम्बरान को भी दुआ करें और ख़ासकर हमारे जिगरा भाई साहब के लिए भी दुआ करें कि उनको अल्लाह ताला ने और सेहतमंदी दे और बहुत सारे नेक काम करें। और हमारे खासकर हमारे प्ले गोल्स का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी वक्त से हमारे इस प्रोग्राम को अपने चैनल में शायद किया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।